So what do you mean by overheads? Can you tell me the concept of overhead? Which part of the cost sheet included in overhead? Hmm? The part remaining after prime cost included in overheads. है ना? Overheads is nothing but it is the sum of all indirect material, indirect labor and indirect other expenditures. है ना? हमने कल ही वहां पर चर्चा की है कि ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं। प्राइम कॉस्ट के अलावा कॉस्ट शीट जो होता है हमारा, कॉस्ट शीट में क्या क्या होता है। कॉस्ट शीट देखिए, कॉस्ट शीट कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट में हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है प्राइम कॉस्ट से, है ना। तो प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हैं हम? प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं हम डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट other expenses. Uh, After adding up all these three items, we'll get the prime cost. And after that, we required also many expenditure for the production of any product or rendering any services, है ना। तो इसके लिए जो कुछ भी और एडिशनल एक्सपेंडिचर लगते हैं, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन कुछ ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं। देन कुछ सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये जो पार्ट है आफ्टर प्राइम कॉस्ट, द ऑल अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओके, वो ओवरहेड के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं। जो कुछ भी रिमेनिंग पार्ट है प्राइम कॉस्ट के बाद में का, जो रिमेनिंग पार्ट है कॉस्ट शीट का, वो आ जाता है हमारे ओवरहेड्स के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल देखा है इसे। आज देखेंगे हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओवरहेड्स costing, that is classification of overheads. Classification means what? Classification means grouping, and how we can make a groups. We can make a groups on the basis of their characteristics. The same nature, same feature overheads come under the one head, and we make a one group of that particular overheads is called as a classification of overheads. क्लासिफिकेशन करना मतलब हमें अलग अलग ग्रुप में बांटना है ओवरहेड्स को। हम कैसे बांट सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ important basis है, on the basis of which we can classify total overheads under different heads. That is, we can classify overheads under functional classification by using functional classification. Classification with regard to behavior of the expenditure. Element-wise classification we can make. Classification according to the nature of expenditure. You know, we can classify all overheads under these categories, under these four categories. Classification according to nature of expenditure, element-wise classification, classification with regard to behavior of the expenditure, functional classification. So look at the functional classification. On the basis of functions, we can classify all overheads into different groups. That is, functional means on the basis of functions means which functions perform in the organization। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, सेलिंग फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन होता है। On the basis of that function, we can classify all overheads in different groups. The main groups forming the basis of the classification are manufacturing overheads, administrative overheads, selling overheads, distribution overheads, and research and development overheads। तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स ओवरहेड कौन कौन से हैं?
The overhead which is related with the production function or which is related with the factory is called as a manufacturing overhead. इसका एक ग्रुप बनाएंगे हम. जो एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहेंगे. जो एक्सपेंडिचर फैक्ट्री से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर ले सकते हैं. कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? फैक्ट्री रेंट है इसका एग्जांपल. फैक्ट्री रेंट बिकॉज विच इज arise due to the uses of factory for the production function, है ना. ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो वो आ जाएगा इसके अंदर. देन ओवरहेड ऑन ऑयल, फ्यूल, गैस, लाइटिंग, हीटिंग. These are the some examples of manufacturing overheads, है ना. जो कुछ भी इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो फैक्ट्री में फैक्ट्री लेबर है वो फैक्ट्री में आ जाएगा, है ना. इनडायरेक्ट जो लेबर है वो फैक्ट्री में आ जाएगा. वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, है ना. तो इस प्रकार हम एक ग्रुप बना सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन वी कैन क्लासिफाइड overheads under manufacturing overhead, है ना. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स includes rent of factory, oil, fuel, gas, heating, lighting. All expenditures which is related with the factory is called as manufacturing overhead. Okay. Administrative overheads. The next category of overhead is administrative overheads. Administrative overheads includes all those expenditures which is related with the administration of the organization, है ना. प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे. लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के अलावा हमें कुछ उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है और उसका रिकॉर्ड रखने का काम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस करता है. वहां पर कुछ एम्प्लॉय होते हैं जैसे ऑफिस एम्प्लॉयज, है ना, उनकी सैलरी है. तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कुछ स्टेशनरी चाहिए, ऑफिस स्टेशनरी. ऑफिस के लिए एक रूम चाहिए या एक बिल्डिंग चाहिए, तो उसके ऊपर का जो ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर्स हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो आ जाएंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर. ओके. It means that we can define administrative overhead as administrative overheads are those overheads which is related with the administration of the organization or which is related with the administration function of the organization. This is the second category of overheads under functional classification of overhead. Then selling overhead. After production of product, it is necessary to sell out it. Sell it. You know, selling is a very important function because it is very important source of revenue. है ना. तो ये जो फंक्शन है सेलिंग का, तो इसके लिए भी कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है ना. कौन कौन से एक्सपेंडिचर सेलिंग के अंदर आते हैं? कैन यू टेल मी अबाउट सम एग्जांपल्स regarding with the selling overheads? Selling overheads are those overheads which is related with the sales activities of the organization, sales function of the organization. तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन से जिसे हम सेलिंग ओवरहेड के नाम से जान सकते हैं? Can you cite some examples from your side? हेलो, सुन रहे हो ना?
हेलो, सर। Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन से सेलिंग ओवरहेड्स हम कह सकते हैं? देखिए, वहां पर अगर हमें सेल करना है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करना है ना? तो मार्केटिंग के जो एक्सपेंडिचर्स है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, वो इसके अंदर आ जाते हैं सभी। सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी है, सेल्समैन सैलरी के अलावा सेल्समैन कमीशन है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है ना? इट इज रिलेटेड विद द सेल्स एक्टिविटीज, है ना? तो ये जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे हमारे सेलिंग ओवरहेड के अंदर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग के अलावा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने यहाँ पर सेपरेट कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि सेलिंग तो हमारा मेन फंक्शन है, लेकिन उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फंक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, किस डिपार्टमेंट को कितना स्टॉक भेजना है ना? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं हमारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, तो कहाँ पर कितना माल भेजना है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। जैसे स्टोरेज फैसिलिटी भी वहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी होगी, स्टोरेज फैसिलिटी, है ना? वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। So distribution overhead, we can define it as a distribution overhead are those overhead which is related to distribution of product or goods, है ना? गुड्स और प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कुछ भी हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंदर कैलकुलेट करेंगे। Then research and development expenses. Research and development is a very important activity in the business organization, है ना? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेपरेट यूनिट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट डज इट प्लेस, व्हाट रोल डज इट प्ले, कौन सा रोल प्ले करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? कौन सा रोल प्ले करता है? अगर हमारे कस्टमर्स है उनकी जो चॉइसेस है वो बदल रहे हैं, तो उनके चॉइसेस कैसे बदल रहे हैं, कौन कौन से चॉइसेस है उनके, कैसा पैटर्न है, कौन सा ट्रेंड हमारा चल रहा है, इसके लिए हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट सर्च करता है। और रिसर्च मीन्स व्हाट? सर्च अगेन एंड अगेन। फॉर इनोवेशन रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, है ना? To make innovative product, research is very important. To make changes in existing product, research is very important. है ना? So there is a research and development department in the organization, and all expenditures which is incurred for this department or this function is called as research and development expenses. तो इसकी हम एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं, ये एक अलग फंक्शन है। According to functional classification, we can make these categories under the head of functional classification of overhead: manufacturing overhead, administration overhead, selling and distribution overhead, and then research and development expenses. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो हम नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, नए नए मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो इस डिपार्टमेंट की वजह से आ जाते हैं। जैसे हमारे चॉइसेस बदलते हैं, जैसे हमारे प्रेफरेंसेस बदलते हैं, इसी प्रकार का कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है। वो किस बेस पर देती है? तो उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो आपके चॉइसेस के बारे में जानता है, रिसर्च करता है, सर्च करता है क्या चाहिए, हमारे कस्टमर कैसा सेटिस्फाई हो सकता है ना? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो उनकी जो चॉइसेस है, उनके जो प्रेफरेंसेस है वो जानना जरूरी है। उसी प्रकार का अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रकार का प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है
तो वो हजारों को बताता है। इस प्रकार हमारा जो गुडविल है, गुडविल भी बढ़ जाता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरी जो फंक्शन है, कुछ इनोवेटिव चेंजेस करने हैं, कुछ नया लाना है, तो इस डिपार्टमेंट का वहाँ पर रोल होता है। तो इस प्रकार भी हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन विथ रिगार्ड टू द बिहेवियर ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का बिहेवियर कैसा है ना, इट इज डिपेंड on the how it is related with the volume of production. If the volume of production increase, some expenditures will be increased, है ना। अगर हम प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा बढ़ाते, प्रोडक्शन बढ़ाते, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है कि प्रोडक्शन के साथ साथ उनमें इंक्रीज आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन चाहे कुछ भी हो लेकिन वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, है ना। तो जो एक्सपेंसेस on the basis of behavior, we can classify overheads under three categories, that is fixed overhead, variable overhead and semi variable overhead, है ना। सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स ओवरहेड, तीन कैटेगरी हम बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एक्सपेंडिचर। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आउटपुट के साथ बढ़ते या घटते हैं। अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, आउटपुट डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। जैसे हम वेरिएबल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आउटपुट चाहे जितना हो लेकिन वो रिमेन कांस्टेंट होता है, चाहे वो 1000 का हो या 100 का हो, आउटपुट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, वो जो लगना है वो लगना है। जैसे फैक्ट्री रेंट है ना, कुछ भी आउटपुट करो लेकिन फैक्ट्री रेंट देना ही है ना। तो जो एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रीज और डिक्रीज विथ द output of a company is called as variable expenditure। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका कोई लेन देन नहीं है, वो रिमेन सेम रहते, उन्हें हम फिक्स एक्सपेंडिचर्स के नाम से जाने जाते हैं। देन सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर फिक्स ओवरहेड कौन कौन से, उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए। उसमें आ जाता है रेंट ऑफ बिल्डिंग, स्टोरेज स्पेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। रेंट आपको बिल्डिंग का अगर आपको 10,000 पे करना है, तो आप चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो या 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको उतना ही रेंट पे करना है बिल्डिंग का। स्टोरेज स्पेस तो उतना ही लगना है जो हमने डिसाइड किया। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं उतना ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंगली आउटपुट, आउटपुट के हिसाब से ये चेंज नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं फिक्स ओवरहेड्स। तो फिक्स ओवरहेड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The expenses which does not increase or decrease with the production or output is called as fixed overheads। प्रोडक्शन के हिसाब से जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो फ्लक्चुएट नहीं होते, उन्हें हम फिक्स ओवरहेड्स कहते हैं। देन वेरिएबल ओवरहेड, इट इज कॉस्ट व्हिच टेंड्स टू फॉलो द लेवल ऑफ एक्टिविटी। Variable overhead cost vary in total in direct proportion to the volume of output। देखिए अब ये जो ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स हम किसे कहेंगे? जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, उसे हम वेरिएबल ओवरहेड कहेंगे, है ना। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि जिसके साथ हमारा जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते या घटते? वहाँ पर मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनडायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन भी वहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज। जैसे फ्यूल
फ्यूल है या ऑयल है, मशीनरी को अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो आपको जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं मशीनरी के लिए, फ्यूल यूज कर रहे हैं, हीटिंग लाइटिंग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो हम इसे वेरिएबल, क्योंकि ये अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन ये बढ़ता है या घटता है। आपका प्रोडक्शन बढ़ गया ये बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन घट गया ये घटेगा, है ना। तो वी कैन डिफाइन वेरिएबल ओवरहेड एज variable overhead is nothing but the overhead which is vary with the vary or fluctuate with increase or decrease in the output or production is called as variable overheads. आउटपुट के हिसाब से जो जो ओवरहेड घटेगा या बढ़ेगा उसे हम वेरिएबल ओवरहेड कहेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, देखो वहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स है। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, स्पॉइलिंग है, टूल्स है, डिफेक्टिव वर्क लॉस है, लुब्रिकेंट्स है, लाइटिंग है, हीटिंग है, ये सभी जो एक्सपेंसेस है वो हमारे आउटपुट के हिसाब से बढ़ते हैं या घटते हैं। हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिक्रीज हुआ ये एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। देन वी कैन अगेन क्लासिफाइड overheads under third category, that is semi variable cost. Semi variable cost means what? Partly variable and partly fixed. जैसे कि टेलीफोन चार्जेस है ना, टेलीफोन चार्जेस कुछ जो पोर्शन होता है उसका फिक्स होता है, कुछ पोर्शन होता है जैसे आपके कॉल बढ़ेंगे उसका एक्सपेंसेस बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये आ जाता है हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में या सेमी फिक्स कॉस्ट में। हम इसे या तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं या सेमी फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं या मिक्स कॉस्ट भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड हम according to the behavior we can classify overheads into three categories, that is fixed overhead, variable overhead, semi variable or semi fixed cost or overheads। तो सेमी फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे हम? टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इसका कुछ पोर्शन एनुअल चार्ज होता है वो फिक्स होता है, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि आपके कॉल्स बढ़ेंगे तो वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो ये सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। देन सेल्समैन सैलरी है, अगर हम सेल्समैन को कमीशन के थ्रू भी पेड करते हैं, सेल्समैन को कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ उसका डिपेंड करता है उसके सेल्स पर, है ना। तो ये आ जाता है हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में। इस प्रकार हम according to the behavior of expenditure we can classify total overheads into three categories, that is fixed overhead, variable overheads and semi variable cost or fixed semi fixed cost, okay. Then element wise classification, as we know that there are three elements is necessary for any kind of production or rendering any kind of services. For production of any product we require material, we require labor, we require expenses. As we discuss on overheads, we include only indirect materials, indirect labor, and indirect expenses in this category under element wise classification. इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं ये आप जानते हो, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं ये आप जानते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं ये आप जानते हो। The material which we cannot associate it with the product or we cannot identify with the product is called as indirect material। जो मटेरियल हम प्रोडक्ट के साथ पहचान नहीं सकते इसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। जो लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ में हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा ऑफिस स्टाफ का सैलरी है ये तो लगता है लेकिन इसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है
उससे रिलेट नहीं होते, लेकिन ये तो लगते ही है, तो इसे हम इनडायरेक्ट लेबर में कैलकुलेट करते हैं। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं कुछ, है ना। तो वो जो कुछ भी होता है, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, वो मटेरियल में आ जाते हैं। लेबर में जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसके अलावा जो कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो हम जो प्रोडक्ट के साथ में हम उसे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये इसके अंदर आ जाता है, अंडर द हेड ऑफ एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। This classification of overhead is done according to the nature and source of expenditure and follow naturally from the definition of overhead. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस प्रकार हम वहाँ पर जो कुछ भी हमारे एक्सपेंसेस है या ओवरहेड से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ओके, then on the basis of nature we can classify expenditure on the basis of nature also, classification according to nature of expenditure। एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, इसके आधार पर भी हम कुछ ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार हम टोटल ओवरहेड जो है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं ना। If you have any queries, any questions regarding this topic, you can tell me. You can ask me. हेलो हेलो, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? देखिए, तो में मेरी आपसे बातचीत नहीं होती है ना, जो कुछ भी चल रहा है मैं पूछता हूँ लेकिन आप आंसर नहीं करते, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, तो हम जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स है वो आज हमने देखा। उसमें हमने देखा कि हम ओवरहेड को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। On the basis of function, we can classify overheads under manufacturing overhead, administrative overhead, selling overhead, distribution overhead, research and development overhead, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर दोज ओवरहेड्स व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन हाउस और फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री में होने वाले जो कुछ भी एक्सपेंसेस है, जो कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, oil, fuel, coal, gas, heating, lighting, electricity. These are included in the manufacturing overheads. Then we have also think over administration overhead. Administration overhead includes all those expenditures which is concerned with the office or office related activities, है ना। तो उसमें ऑफिस स्टाफ सैलरीज है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस स्टेशनरी है एंड ऑल अदर ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। देन सेलिंग है, सेलिंग ओवरहेड में सेलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे सेल्समैन सैलरी है, सेल्समैन कमीशन है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स है, ये हमारा सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमने देखा स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, उसके लिए जो कुछ भी हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। जैसे सैम्पलिंग, सैंपल भेजे हमने कुछ, सैम्पलिंग का जो एक्सपेंडिचर है, सैंपल एक्सपेंडिचर, वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आ जाएगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कुछ भी हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम देखते हैं मार्केट में, तो इसकी वजह ही ये डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो क्या है, उसके लिए जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है, जैसे कि हमने सर्वे किया कस्टमर के प्रेफरेंसेस जानने के लिए, चॉइसेस जानने के लिए, तो ये आ जाता है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के अंदर। Okay. Then we have also classified expenses on the basis of behavior of expenditure। behavior के हिसाब से हम तीन कैटेगरीज में हम एक्सपेंडिचर को वहाँ पर हम
डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड. The expenditure which is remain same whether the production increase or decrease is not change, that expenditure is called as fixed overhead. Variable overheads. Variable overhead is the overhead which increase or decrease with the output or production of the company is called as a variable overhead, है ना. वेरिएबल ओवरहेड ऐसे ओवरहेड होते हैं जो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें भी इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्शन घटता है तो उसमें भी वहाँ पर घट हो जाती है या वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. तो इट इज डिपेंड ऑन द आउटपुट, है ना. आउटपुट के साथ बढ़ते हैं, आउटपुट के साथ घटते हैं, उसे हम वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं. सेमी वेरिएबल ओवरहेड ऐसे होते हैं जो इसका कुछ पार्ट तो वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट वहाँ पर फिक्स होता है. तो हम उसे सेमी फिक्स ओवरहेड या सेमी वेरिएबल ओवरहेड दोनों नाम से जान सकते हैं, या सेमी या मिक्स ओवरहेड इस नाम से भी उसे जानते हैं. तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि टेलीफोन चार्जेस है. Telephone, the annual expenditure of telephone is a fixed expenditure, but the calls, the expenditure which is depend on the calls is a variable expenditure. Then सेल्समैन सैलरी का एक एग्जांपल दिया मैंने आपको. सेल्समैन सैलरी जो है, सेल्समैन सैलरी कुछ पार्ट भी फिक्स है, वो फिक्स ओवरहेड होता है, सेमी फिक्स ओवरहेड, एंड उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने वाला जो कमीशन है वो हमारा सेमी वेरिएबल में आ जाता है. देन फिक्स ओवरहेड हो गया सेमी. एलिमेंट वाइज जो है हमने तीन कैटेगरीज में हमने टोटल ओवरहेड्स जो है हमने तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया. दो कैटेगरीज है हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. देन चौथी कैटेगरी जो है नेचर के हिसाब से उसके ऊपर मैंने इतना फोकस नहीं किया है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट. तो ये होगा हमारा डिस्कशन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं. आप हमारे पास अभी भी 7 मिनट बाकी है. आपको कुछ क्वेश्चन है? If you have any queries, any questions, you can ask me. If you want to take a screenshots, तो मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूँ जो कुछ भी हमने स्लाइड्स बनाए हैं पहले से. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स एक स्लाइड है. पहली स्लाइड ये है. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लो. दूसरी स्लाइड फंक्शनल क्लासिफिकेशन. तीसरी स्लाइड क्लासिफिकेशन with regard to the behavior of expenditure, fixed overhead, variable overhead and semi variable overhead, element wise classification. Okay. अब बताओ कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है? नहीं है तो यहाँ पर मैं आज का जो हमारा